السلام علیکم، دس از محمد منیب اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اپنی زندگیوں کے اندر خوش و خرم ہوں گے اور ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ریسنٹلی ایک یوٹیوبر ہے تیمور صلاح الدین، ان کا ایک پوڈ کاسٹ آیا پرویز ہود بھائی کے ساتھ، جس کے اندر مینلی ان کی جو ڈسکشن تھی وہ سائنس پر تھی، لیکن ہود بھائی صاحب چونکہ ایک ایتھسٹ مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں تو وہ پہلے بھی اس طرح کے کمنٹس وغیرہ پاس کرتے رہتے ہیں ریلیجن کے اوپر، اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی انہوں نے یہی کیا۔ تو آج اس پوڈ کاسٹ کو ہم لوگ دیکھیں گے اور ان کو کچھ اچھے دلائل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اپنے ہی پوڈ کاسٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی اچھا بندہ آ کے کوئی اچھی دلیل دے تو میں اس کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بہت ریجڈ ہوں اپنے معاملات کے اندر۔ پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو۔ لبرل ہوتا تھا، تصویریں بھی ہمیں جو ملتی ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ خواتین اسکرٹس پہن کے بھی پھرتی تھیں ادھر۔ تو ہاؤ ڈو یو ریمبر اٹ دیٹ ٹائم؟ بالکل اسکرٹس پہن کر پھرتی تھیں، سائیکلیں چلاتی تھیں۔ ہمارے ارد گرد ہندو بھی رہتے تھے، پارسی اور بہت سے کرسچنز۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی بنایا، اور ہندوؤں نے بھی جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی عمارتیں، ان کے بنائے ہوئے ادارے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ڈسکشن شروع ہوتی ہے تو السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد پہلی جو سوال کرتے ہیں مورو صاحب وہ یہ کرتے ہیں کہ 1960 کے اندر آپ نے پڑھائی شروع کی تھی اپنی کراچی گرامر اسکول کے اندر، تو اس وقت تو ہم نے سنا ہے کہ پاکستان بڑا لبرل ہوتا تھا اور خواتین جو ہیں وہ اسکرٹس پہن کے گھومتی تھیں۔ تو کہتے ہیں جی بالکل، پاکستان بہت لبرل ہوتا تھا، ہم لوگ بہت لبرل ہوتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ وہ اٹیچ کرتے ہیں اس بات کو کہ اس جگہ کو بنانے والے ہی ہندو، پارسی اور کرسچنز تھے، اور یہ دلیل وہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ پیچھے سوال لبرلزم کا ہے۔ تو یہ دلیل انہوں نے اس لیے دی کہ پاکستان کے اندر لبرلزم اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ اس کو بنانے والے جو ہیں وہ پارسی ہیں، ہندو ہیں اور عیسائی ہیں، تو اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر یہ تمام لوگ اکٹھے رہ سکیں۔ تو سر اگر آپ کی ہی دلیل کو لیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ ہاں بھی جس جگہ کو جن لوگوں نے بنایا ہے وہاں پر اسی کا قانون چلے گا، تو پھر یہ آپ کا جملہ تو ایک جنگ چھیڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کو بسانے والے ہم لوگ تھے، یہاں پہ ہم لوگوں نے راج کیا تھا۔ اسی طرح ہم اندلس میں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپین کو بنانے والے ہم لوگ تھے، وہاں پہ تحقیقات کرنے والے ہم لوگ تھے۔ اور اگر اس سے سب سے پیچھے چلے جائیں، جس بات سے آپ کو سب سے زیادہ چڑ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب کریٹر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس پورے ورلڈ کی، تو اور وہ کہتا ہے کہ میرا بنایا ہوا سسٹم اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر تمام اقوام اکٹھے رہ سکتی ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اس کے اندر جو ہے وہ فوقیت حاصل نہیں ہوتی، تو آپ اس سسٹم کو اپلائی کیوں نہیں کر لیتے؟ بات ہی ختم ہو جائے گی کہ کریٹر جو ہے اس کا سسٹم اپلائی ہے، ہم نے کسی اور کا سسٹم اپلائی کیوں کرنا ہے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس پورے ٹائم میں آپ کے اپنے نظریات میں کوئی جس وقت میں کراچی گرامر اسکول سے نکلا تو مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی، ایسے جیسا کہ میری آنکھوں کے اوپر کوئی پٹی باندھی ہوئی ہو۔ لیکن جب میں MIT پہنچا تو ایک بڑا دھچکا مجھے لگا، وہ یہ کہ ادھر نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس نکلے ہوئے ہیں احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر، جو پروفیسرز کا تھا، اور تو اور جو MIT کا پریزیڈنٹ تھا جیروم ویزنر، وہ بھی ان جلوسوں میں شامل ہوتا تھا۔ اور میں نے کہا اپنے آپ سے، یہ کیا، واٹ از دس از انکریڈبل۔ اپنے ملک کی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اور حکومت ان کو کرنے دے رہی ہے، ان پہ گولیاں بھی نہیں چلا رہی ہے جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ سیکنڈ سوال یہ کرتے ہیں کہ مورو بھائی کے سر آپ کے نظریات کے اندر ارتقاء کس طرح سے آئی نا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب میں کراچی گرامر اسکول سے نکلا تو میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی پاکستانیت کی، لیکن جب میں وہاں پر گیا تو میں تو بڑا دیکھ کے یہ پریشان ہو گیا کہ وہاں پہ ہر جو اسٹوڈنٹ ہے، پروفیسر ہے، ایون یونیورسٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اور حکومت وقت ان کو بغاوت کرنے دے رہی ہے، ان پہ گولیاں نہیں چلا رہی جس طرح پاکستان میں چلائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ دی سپورٹنگ پاکستانی گورنمنٹ، اینی پاکستانی گورنمنٹ جس نے یہ کیا ہو، خواہ وہ بھٹو صاحب ہوں، خواہ وہ پچھلے دور کے اندر نواز شریف والے رہے ہوں، اسی طرح عمران خان صاحب ہوں جنہوں نے عام احتجاجیوں کے اوپر گولیاں برسائی ہوں، ہم کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ سر کیا امریکہ بھی یہی کرتا ہے جس کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کے خلاف یہاں پر ہمارا کوئی سیاستدان بیانیہ دے دے تو اس کا پورا سیاسی کریئر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ میں کوئی عام شہری بھی اٹھ کے جو ہے وہ امریکہ کے خلاف کوئی بیان دے دے تو اس کو غائب کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جی امریکہ میں موجود ہے۔ آپ کے سامنے عافیہ صدیقی کی جیتی جاگتی مثال موجود ہے۔ تو سر امریکہ اتنا اچھا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے باشندوں کے لیے تو بہت اچھا ہو کہ حکومت چینج کرنے سے اس کو فرق نہ پڑتا ہو، لیکن جیسے ہی آپ اس کے سسٹم چینج کرنے کی بات کریں گے نا کہ آپ کا سسٹم 2 نمبر ہے۔ آپ نے جاپان کے اندر جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کیے ہیں، اب تک واحد ملک ہے میرے خیال میں جس نے دوسرے کسی ملک کے اوپر ایٹم بم گرایا ہے، اور وہ امریکہ ہے، اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ یار وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اپنے لوگوں کو بغاوت کرنے دے رہے ہیں۔ تو وہ بغاوت ان کو تب تک اچھی لگتی ہے جب تک وہ چہرے تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان کو کہیں گے کہ آپ کا سسٹم خراب ہے
तो परवेज साहब उन्होंने आपको भी नहीं छोड़ना। बहरहाल आगे चलते हैं। एक ओपिनियन चाहूँगा इसके ऊपर कि एक नेशनलिज्म जो इंसान के अंदर डाली जाती है वो नेशन स्टेट के तस्वर से ही पैदा होती है, तो आपको उस वक्त ये आइडियोलॉजिकल ख्यालात के भी सवाल पैदा हुए या फिर ये नेशन स्टेट का तस्वर, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नेशन स्टेट इज़ एन अबॉमिनेशन। नेशन स्टेट एक वक्त की ज़रूरत थी। आप समझ लीजिए 400 साल पहले जब लकीरें पहली दफ़ा खींची गई थी, ख़त्म करो, लानत हो नेशन स्टेट के ऊपर। खा वो इसराइल हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, सारे के सारे इन नेशन स्टेट्स को ख़त्म करो, क्योंकि देखें बुनियादी तौर पर हम सब एक हैं इंसान, जो जीनियाती एतबार से एक दूसरे के साथ एक ही नस्ल है। हमें कोई वर्केबल सिस्टम उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, जिसमें मतलब बरतानिया इन एंड आउट चल रहा है, हमें कोई ऐसा कोई सिस्टम नजर आए जो आइडियलिस्टिक के अलावा, यूटोपियन आइडिया के अलावा एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल तरीके से आपको नजर आता है हकीकत में? देखें यूरोपियन यूनियन इसकी जीती जागती मिसाल है। इसे क्यों नहीं रेप्लिकेट किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। मुझे यहाँ पर अब 3 बातें। पहली बात उनकी ठीक है, बल्कि दूसरी बात उनकी ठीक है। पहली बात उन्होंने ये की कि 400 साल पहले जब नेशनल स्टेट्स की पहली दफ़ा लकीरें खींची गई और बॉर्डर्स बनाए गए, तो उस वक्त ये वक्त की ज़रूरत थी। तो उस वक्त ये वक्त की ज़रूरत इसलिए थी कि लोगों को रिलीजन से हटाकर असबियत के साथ जोड़ना चाहता था अंग्रेज़, और वो उसमें कामयाब भी हुआ। क्यों? होता क्या था कि आप हिंदुस्तान पे हमले की बात करते थे, आपको तुर्क उठा के आगे से धमकी देते थे, आप तुर्क पे हमला करने की धमकी देते थे, तो इधर से हिंदुस्तान के मुसलमान आपको धमकी दे देते थे, क्योंकि वह खिलाफत का निज़ाम चल रहा था। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी 400 साल पहले इसकी ज़रूरत थी। 400 साल पहले इसकी ज़रूरत थी जी रिलीजन से इंसान को दूर करने के लिए और एक असबियत के साथ इंसान को जोड़ने के लिए, ताकि इंसान मजहब को बाद में सोचे, अपना जिस जगह पर वो रह रहा है उस जगह को पहले सोचे। लेकिन बाद में वही बात आ गई कि अंग्रेज़ के लिए कर्ज बन गई, तो इसी वजह से परवेज साहब को भी वो लग रहा है कि वो कर्ज है। और यकीनन नेशनल स्टेट इज़ अ कर्ज, क्योंकि ये आपको मजबूर करती है कि आप फ़लस्तीन के मुसलमान के बारे में ना बोलो। इवन आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप देखेंगे कि मुसलमान सियासतदान जो हैं वो अमेरिका के ख़िलाफ़ फिर भी बोल लेंगे, कश्मीर के अंदर होते हुए मजालिम के बारे में बोल लेंगे, लेकिन कभी भी चाइना के अंदर जो नस्ल कशी हो रही है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पे आपका नेशनल इंटरेस्ट ख़राब होता है। तो ये इस वजह से जो है वो नेशनल स्टेट्स वैसे ही एक कर्ज हैं हमारे ऊपर, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब अगली बात में वो डंडी मार के, जैसे ही तैमूर भाई ने पूछा उनसे कि सर फिर आपकी नज़र में कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हम लोग जो है वो नेशनल स्टेट्स को ख़त्म कर सकते हैं, तो उन्होंने मिसाल दी है यूरोपियन यूनियन। तो सर मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या यूरोपियन यूनियन बेसिक ह्यूमन राइट्स जो आपके बनाए हुए ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर पूरा वर्क कर रही है? क्या उनकी नज़र में एक रहीम यार खान के अंदर, एक पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ शख्स वही हैसियत हासिल रखता है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर बैठा हुआ बंदा हासिल रखता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक जो मिसाल थी वो सीधी सी बात है, वो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की थी, हज़रत अबू बकर के दौर की थी, हज़रत उस्मान गनी के दौर की थी, हज़रत अली हैदर कर्रार के दौर की थी रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। उनके द्वार की थी कि जिसके अंदर किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं थी कि खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ काजी ने फ़ैसला दिया हज़रत अली के यहूदी के हक़ में, क्योंकि हज़रत अली अल मुर्तज़ा के पास उसमें कोई गवाह मौजूद नहीं था। तो ये सिस्टम मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं हम लोग अगले क्लिप की तरफ। अच्छा, आप लोग चाहें तो ये पॉडकास्ट पूरा भी जाकर वहाँ पर सुन सकते हैं। मैंने इसके अंदर से चंद क्लिप्स निकाले हुए हैं, बाकी तकरीबन साइंसी गुफ्तगू थी, तो साइंस के ऊपर मेरा इल्म इतना ज़्यादा नहीं था, और बेसिक मैंने वही पॉइंट्स उठाए हैं जहाँ जहाँ पे उन्होंने रिलीजन को डिस्कस किया है, और उनको जो है वो कायल करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगली वीडियो जो है वो शुरू करते हैं हम लोग। जब आपको लोग कहते होंगे, आई एम श्योर कि दीन के जरिए इंसान अपनी अखलाकियाती इस्लाह कर लेता है कि मॉरल्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द आइडिया ऑफ हेवन और हेल और गुड और बैड, और ये सारी जो कोड ऑफ एथिक्स जो कहा जाता है रिलीजन को, वो कोड ऑफ एथिक्स अगर आप उस जगह से नहीं पाते तो फिर आपको क्या लगता है कहाँ से आती है वो? तो आप जरा इस बात पे गौर कीजिए कि सबसे ज्यादा चोरी चकारी, बदमाशी, फ्रॉड, टैक्स इवेजन कहाँ होता है? यहाँ होता है ना, पाकिस्तान में। अच्छा, इसका ना मैं जवाब देता हूँ आगे। अगला क्लिप भी आप लोग सुन लें, दोनों को मिला के फिर मैं एक ही दफ़ा जवाब देता हूँ इसका। आप देखें कि जितनी चीटिंग होती है स्टूडेंट्स में, जितनी रियाकारी है हमारे पूरे समाज के अंदर, जितने छठे हुए बदमाश हैं हमारे सियासतदान, और तो और ये जो मलिक रियाज जैसे लोग हैं जिन्होंने गरीबों को बेदखल किया अपने आबाई घरों से, खुद अरबपति बने हैं, और फिर मगफरत करते हैं, जाके मसाजिद बनाते हैं। लाल मस्जिद इसी ने तामीर की थी ना। अच्छा, हाँ, जब तबाह हो गई थी उसके बाद इसी ने बनवाई थी। करप्शन के केसेस में पकड़ा जाता है, जो लंदन में इसके कितने 200 मिलियन पाउंड्स पकड़े गए थे, और जो सरकारी खजाने में पहुंचने चाहिए लेकिन नहीं पहुंचे, वो सारा किस्सा अलग। अब ये जो इंतहाई बदमाश लोग हैं, मलिक रियाज तो एक है ना, लेकिन
दर्जनों क्या सैकड़ों हजारों ऐसे हैं, सारे के सारे चोर फ्रॉड हैं, लेकिन मगफरत कर लेते हैं और फिर हज पर चले जाते हैं, वो उम्रा कर आते हैं, फिर खैरात दे देते हैं और फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और फिर उनकी मगफरत हो जाती है। तो फिर डर किस चीज़ का? वो इधर भी खुश उधर भी खुश होंगे। अच्छा जी, अब सवाल ये था कि सर आपको लोग कहते होंगे कि एथिक्स जो है इंसान को वो रिलीजन देता है, तो आप उसका क्या जवाब देते हैं? तो उसका जवाब जो है ना वो गोलमोल किया परवेज साहब ने। सर उन्होंने आपसे ये सवाल किया था कि रिलीजन आपको एथिकल वैल्यूज़ देता है कि नहीं देता। आपने उसका जवाब पहला ये जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा चोरी चकारी पाकिस्तान के अंदर होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है? क्या यहाँ पर इस्लाम के तमाम कवानीन और ज़वाबित जो हैं वो राइज हैं और उनकी जो है वो पाबंदी हो रही है? तो इसका जवाब है नहीं। जब हम लोग बात करते हैं ना कि जमहूरियत बुरी चीज़ है, तो हम लोग एग्जांपल कभी भी पाकिस्तान की नहीं देते कि पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ ये हो रहा है इसलिए जमहूरियत गलत चीज़ है। हम उसकी बेस्ट एग्जांपल देते हैं, हम उसके डेनमार्क की एग्जांपल देते हैं, हम उन ममालिक की एग्जांपल देते हैं जहाँ पे जमहूरियत सही तरह से राज कर रही है। तो आपको जब इस्लाम की एग्जांपल देनी है ना, तो आपको भी उसकी बेस्ट फॉर्म की एग्जांपल देनी चाहिए। यानी कि आपको बताना चाहिए दौरे उमर फारूक, दौरे अबू बकर, दौरे उस्मान, दौरे अली, क्या इन चारों अदवार के अंदर भी यही काम होते रहे? तो जाहिर सी बात है आपको उसके पास जवाब नहीं होगा। सेकेंडली एक और चीज़ ये आ जाती है कि क्या रिलीजन आपको कहता है कि चीटिंग करो? क्या रिलीजन आपको कहता है चोरी करो? बल्कि सबसे ज़्यादा दुनियावी सख्त सज़ाएं, आखिरत की तो सज़ा है ही है, आपके रिलीजन इस्लाम ने बताई है। और इस्लाम ने क्यों कहा कि चोर के हाथ काट दो? ताकि पूरे मोहल्ले के सामने जब चौक के अंदर एक बंदे के हाथ काटे जाएंगे ना चोरी की वजह से, हिम्मत नहीं होगी किसी की दोबारा। दुनिया में क्यों कहा इस्लाम ने आखिरत पे भी चीज़ें छोड़ी हैं, लेकिन हकूकुल इबाद की सारी चीज़ें दुनिया पर छोड़ी। आगे मैं आता हूँ। अगली बात इन्होंने ये की कि मुझे रिलीजन से एक और ये प्रॉब्लम है कि सर एक तो सबसे बड़ा मसला आप लोगों का ये है कि आप लोग रिलीजन की सही तरह स्टडी नहीं करते। अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो आप लोगों को पता होता कि सिर्फ लाल मस्जिद बना देने से उन लोगों की बख्शिश नहीं हो जानी। एक चीज़ होती है हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह ये है कि मैंने कोई गलत काम किया, मैंने फॉर एग्जांपल नमाज छोड़ दी, मैंने जो है वो ज़िना कर लिया, अकेले के अंदर कोई इस तरह का जुमला कस दिया या इस तरह की गुफ्तगू कर दी जो मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान में है, बाकी लोगों से पर्दा है, उसकी मैंने तौबा अल्लाह ताला से मांगी, उसकी अल्लाह ताला ने मुझे मग़फ़िरत दे दी। एक चीज़ है कि मैंने किसी का हक मारा, मैंने किसी से उधार पैसे लिए हुए थे उसको नहीं दिए, मैंने कहीं से चोरी की और फिर मैंने तौबा की, लेकिन वो तमाम की तमाम चीज़ें मेरे ऊपर कज़ा वापस रहेंगी। कज़ा किस तरह से रहेंगी? मैंने जिसका उधार लिया है, जब तक मैं उसका उधार वापस नहीं करता तब तक मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अगर मलिक रियाज ने कहीं पर भी जो है वो नाजायज़ कब्ज़ा किया है तो उसकी बख्शिश नहीं होगी जब तक जाके वो अपने कब्ज़े वापस नहीं करता, उन लोगों से माफ़ियाँ नहीं मांगता। लाल मस्जिद बना देना अलग सवाब है और उसका अलग गुनाह है। आप ये नहीं कह सकते कि उस सवाब की वजह से वो गुनाह चला गया और उस गुनाह की वजह से वो सवाब कबूल नहीं हुआ। इस तरह सिस्टम नहीं रन होता। आप इस चीज़ को स्टडी करें कि ऐसे ही मग़फ़िरत नहीं मिल जाती। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर हकूक़ुल इबाद पर जितना ज़ोर दिया उतना हकूक़ुल्लाह पर भी नहीं दिया। तो वजह यही है कि हकूक़ुल्लाह का अल्लाह ताला कहता है कि वो मेरा और मेरे बंदे का मामला है, लेकिन एक शहीद, इस्लाम के अंदर सबसे प्यारी मौत और सबसे बड़ा रुतबा जो है वो शहीद का है। और उसके बारे में भी आता है कि शहीद के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर उसने किसी का उधार लिया होगा तो वो माफ़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह आता है कि क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा, उसके पास नेकियों का अंबार होगा, पहाड़ होगा, लेकिन वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी के अंदर हुकूकुल इबाद पूरे नहीं करता होगा। उसके पास लोग आएंगे, किसी को उसने मुक्का मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी की जगह पर कब्जे किए होंगे, तो नेकियां देता जाएगा। एक वक्त आएगा उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर लोगों के गुनाह उसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, फिर वही जो अंबार उसका नेकियों का था वो अंबार उसका जो है वो गुनाहों का बन जाएगा। तो इस्लाम ने तो बारहा हकूकुल इबाद का कहा, उसकी सज़ाएँ दुनिया में बताई हैं और आखिरत के लिए भी उसको बार बार इंसान को जो है वो मुतनब्बे किया है कि इन चीज़ों से दूर रहो, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखो। आगे चलते हैं। अब्दुल सलाम साहब की एक डॉक्यूमेंट्री में देखी थी, तो फॉरगिव मी इफ आई गेट माय फिजिक्स रॉन्ग, पर उनकी तरफ से जो क्वांटम वर्ल्ड के अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है वो उन्हें कुरानिक आयात में से उनको ये इंडिकेशन मिली थी। और अराउंड द सेम टाइम देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जो बिल्कुल भी दीनी पस मंजर के नीचे स्टीवन वाइनबर्ग। जी, आई स्टडीड फ्रॉम स्टीवन वाइनबर्ग आल्सो। अमेजिंग। तो आपको क्या लगा कि एक इंसान जो रिलीजियस बिलीफ रखता है और उसको समहाउ कुरानिक आयात से एक फिजिक्स के हकायक उन पे रोशन हो रहे हैं, जबकि वो प्रूव भी करने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, और दूसरी तरफ कोई लादीनी पस मंजर का इंसान है वो भी उसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, तो क्या कोई हम खड़ा किया जा सकता है
रिलीजन को साइंस के साथ? ये इस बात की दलील है कि आपकी सोच कहीं से भी आ सकती है, इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है, जो नतीजा आप इससे अखज़ करते हैं वो सबसे अहम बात बनती है। और सलाम और वाइनबर्ग एक ही नतीजे पर पहुंचे थे जो स्टैंडर्ड मॉडल है और दोनों के नाम से मंसूब है, तो इसको टेस्ट किया गया। भूल जाइए कि इसकी सोच कहाँ से आई, आते हैं गैब से, ये मज़ामीन ख्याल में, जैसा कि गालिब ने कहा था, या मिट्टी से, ऊपर से नहीं आते, नीचे से आते, पता नहीं कहाँ से आते, इट डजंट मैटर। साइंसदान आपका गोरा हो, काला हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, बेदीन हो, डजंट मैटर। यही तो खूबसूरती है साइंस की। सर इट मैटर्स, मैटर क्यों करता है कि दो साइंसदान हैं, एक साइंसदान ने तहकीक की, उसने कोई कुरानिक रेफरेंस नहीं लिया, उसने कोई रिलीजन का रेफरेंस नहीं लिया, वो भी उसी नतीजे पर पहुंचता है और उसकी सोच भी वही कहती है। और एक और साइंसदान है, उसने कुरानिक वर्सेस से जो है वो सोच आई उसको, उसने उस पर तहकीक की और वो कुरानिक वर्सेस ठीक निकली। और ये 3-4 चीज़ें साबित करती है। एक चीज़ तो ये साबित होती है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने हर इंसान को मुसलमान फितरत पर पैदा की है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि कुरान पाक के अंदर बेशतर मुकामात ऐसे हैं जिनको आज साइंस जो है वो प्रूव कर रही है। अगला क्लिप भी मेरा इसी से रिलेटेड है। एक तो इन लोगों से जब सवाल किए जाते हैं ना, ये आगे से गोलमोल कर जाते हैं। अब सवाल ये किया था, सवाल बहुत अच्छा किया था कि क्या रिलीजन और साइंस का हम आहंग खड़ा किया जा सकता है, तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि साइंस एक छोटी सी फील्ड है रिलीजन की हमारी नज़र में। क्योंकि इल्म जो शुरू हुआ वो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक से हुआ, या उससे पीछे चले जाओ तो वो अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम पे चले जाएंगे आप। बहरहाल वो एक अलग से लंबी बहस है, हमारा आज वो टॉपिक नहीं है। तो अगला क्लिप पहले सुन लें, फिर इसका मैं इकट्ठे जवाब देता हूँ, क्योंकि वो भी साइंस और रिलीजन से रिलेटेड ही है। आखिरी है वो क्वेश्चन भी इनका। सर वो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बारे में कहते हैं कि वहाँ पे उस ज़माने में जो एकदम से बहुत सी मखलूक़ात वजूद में आई, उसका मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं, प्रॉबिलिटी नहीं है कि वो डार्विनिस्टिक एवोल्यूशन के जरिए एकदम से एक्सप्लोजन हो। तो वहाँ पे स्टीफन मायर्स, जिनका मैंने आपको पहले मेंशन भी किया था, कि वो कहते हैं कि ये एक जहानत होगी, क्योंकि जो डीएनए है वो एक कोड है, वो एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन के पीछे कोई जहानत ज़रूरी होती है। जितना लाइब्रेरी में अगर कोई किताब पढ़ी हुई है तो वो किसी इंसान ने लिखी है, उसके जहन ने लिखी है, तो डीएनए अगर एक कोड है और एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो वो भी किसी जहानत ने ही वहाँ पे रखा होगा वो कोड। तो ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में जो एकदम से मखलूक़ात वजूद में आई, तो वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन कोई एक गैर मामूली जहानत है जिसने आके जेनेटिक मटीरियल इंजेक्ट किया होगा इसमें। तो ये मतलब गैप में गॉड ढूंढने का हाइपोथेसिस है एक तरह का। लेकिन इस तरह की कॉन्वर्सेशंस का आपको लगती जगह है? उसने कभी कोई साइंसी पेपर नहीं लिखा, वो बायोलॉजिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने एक साइंसदान का हवाला दिया कि साइंसदान वो कह रहे हैं कि नहीं है, बहरहाल मुझे साइंसी इल्म नहीं है, लिहाजा मैं ये नहीं डिक्लेयर कर सकता कि वो बंदा साइंसदान ही होगा। कि सर उन्होंने जो है वो ये बात की है कि डार्विन रेवोल्यूशन के अंदर कि एकदम से जो मखलूक़ात का वजूद आया वो पॉसिबल नहीं है जब तक आप रेवोल्यूशन ये कहती है कि एक सिंगल सेल था उससे रेप्लिकेट होते गए। तो वो कह रहे हैं कि एक सिंगल सेल का वजूद तब तक नहीं आ सकता जो उसके अंदर आप पेचीदगी देखो, अगर उसके कोड की, डीएनए का जो सेल के अंदर कोड है, तो आपको पता ये चलेगा कि वो उस तरह से नहीं आ सकती जब तक उसके पीछे कोई बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल नहीं बैठा हुआ पीछे जो उसको सही पोजीशन पर, सही मॉलिक्यूल को सही जगह पर रखे। तो उसका जवाब ये दिया है कि वो बंदा कोई साइंसदान तो नहीं है, बहरहाल फिर भी तो उसने कभी कोई बायोलॉजी का पेपर नहीं लिखा, तो उसकी दलील ठीक नहीं है। तो सर आप फिर आए दिन रिलीजन पे क्यों जो है वो कमेंट पास करते हैं? कभी आप ये कहते हैं कि जो लड़कियां हिजाब पहन के आती हैं वो नालायक होती हैं, और जो हिजाब के बगैर आती हैं वो लायक बच्चियां होती हैं। तो ये आपको किसने हक दिया? ये तो फिर काम उन लोगों को करने दें जो रिलीजन पे तहकीकात करते हैं। आपने तो अपनी वो जो आपका 1.5 घंटे का पॉडकास्ट था उसकी सारी की सारी खुद ही जवाब दे दिया कि मेरी बात को किसी को कोई दलील ना समझे इस चीज़ को, क्योंकि मैं खुद एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव नहीं रखता, मैं तो एक साइंसी आदमी हूँ, लिहाजा मेरी बात को कोई जो है वो अहमियत ना दी जाए। बहरहाल आगे चलते हैं। साइंटिस्ट हो भी तो उस अगर कोई ये कहे भी, क्या इम्कान बनता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इनके एटम्स आकर इस खास तरतीब के साथ जुड़ जाएंगे, तो वो इम्कान तो सिफर के बराबर। पर आपकी सोच साइंसी है, तो मैं आप थोड़ा सा बताता हूं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता। आप जब सादा एटमों को इकट्ठे करते हैं और तवानाई फराहम करते हैं, जैसा कि हुआ था जमीन के इब्तदाई लम्हात में, जब बिजली चमकती है तो बिजली चमकने से एनर्जी मिलती है, उसके होते हुए जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर है, उससे एमिनो एसिड्स बनते हैं। एमिनो एसिड्स वो ईंटें हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन से मजीद प्रोटीन्स बन सकते हैं। अच्छा, अब ये सारे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। मतलब ये कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को जन्म देता है, और जो दूसरा सिस्टम होता है आमतौर पर वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उसका पेरेंट सिस्टम है, लेकिन उसमें कभी कभी थोड़ी सी कोई तब्दीली आ जाती है, कोई फर्क आ जाता है। माहौल पर मुनहसर है कि वो पैटर्न फिर रिपीट होगा कि नहीं। लेकिन अगर आप इम्कानात का हिसाब लगाएं, प्रोबेबिलिटीज, तो इसको मार्कोवियन चेन कहते हैं। मार्कोवियन चेन से जो प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जस्ट गैदरिंग आर्बिट्री नंबर्स ऑफ एटम्स टुगेदर एंड कमिंग टू सम फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो मायर साहब हैं, इन्होंने ना प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी है ना बायोलॉजी पढ़ी है।
अच्छा, अब दो बातें, एक तो पिछला सवाल हमारा रहता था वो ये था कि क्या रिलीजन और साइंस को हम आहंग खड़ा किया जा सकता है, और सेकेंडली यहाँ पे जो है उन्होंने पहले तो ये बात खुद उन्होंने तस्लीम की है कि अगर मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल उन्होंने नहीं दी, कि अगर यहाँ पे मेरे सामने ये मोबाइल है, इसका मैं कवर निकाल के ये साइड पे रख लूँ, इसका जो है वो अंदर से सिम निकालूँ, इसको कैमरा निकालूँ, इसकी एक एक तार अलग करके रख लूँ, तो कितने % इम्कान है कि ये खुद ब खुद ही जो हैं वो चीज़ें माहौल के मुताबिक, माहौल इनको अगर एनर्जी प्रोवाइड करता है तो ये एक अरेंजमेंट में आ जाएंगी, और एक अरेंजमेंट भी ऐसी होगी कि वो यूजेबल चीज़ बनेगी, बड़ी आला किस्म की चीज़ बनेगी। तो वो प्रोबेबिलिटी वो खुद कह रहे हैं कि ये तो 0.0000 समथिंग के बराबर है, कहते हैं। फिर आगे कहते हैं लेकिन अगर आपकी सोच साइंसी है तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ होगा। वो कहते हैं कि ये एटम पड़े हुए थे, सारे बिखरे हुए पड़े हुए थे, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इनको जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो फराहम की गई, और इन्होंने अपने आप को अरेंज करके एक स्ट्रक्चर बना लिया, और वो एक सेल बन गया, और उसके बाद वो रेप्लिकेट होता गया, और एक ह्यूमन बीइंग का जो है वो, बल्कि ह्यूमन बीइंग तो बहुत बाद में फिर जो है वो एक छोटा ऑर्गेनिज्म बना, उससे जो है वो फिर म्यूटेशन होती गई, और आज जो है वो एक इंसान उसकी आपके सामने जीती जागती मिसाल है। अब यहाँ पर साइंस के पास इस वक्त जो साबित नहीं कर पा रही ना साइंस, वो ये नहीं कर पा रही कि जो पहला बना सेल बना उसके अंदर जो डीएनए था उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। तो सर जब आपकी साइंस ने तहकीक की ना आयरन के ऊपर, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर कहा व अंज़लनल हदीद फी, कि हमने जो है वो हमने लोहे को उतारा ज़मीन पर। अल्लाह ताला ने ये नहीं था कहा कि हमने ज़मीन में इसको पैदा किया या ज़मीन से इसको निकाला। आज जब साइंस ने तहकीक की तो पता ये लगा कि आयरन ज़मीन के ऊपर क्या आपके सोलर सिस्टम के अंदर भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। एटम्स को एनर्जी चाहिए 6 मिलियन सेल्सियस की आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए, और आपके सन की जो सरफेस एनर्जी है वो है 5500 सेल्सियस। इतना ज़्यादा फ़र्क है, और ये कुरानी आयत 1 मिनट में प्रूव होती है कि अल्लाह ताला ने उतारा का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया, ये नहीं कहा कि हमने इसको जो है निकाला। इसी तरह दर्जनों आयात हैं कुरान पाक की, अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम ज़मीन को के अंदर नहीं देखते कि रात को हम दिन में कैसे बदलते हैं, दिन को रात में कैसे बदलते हैं, और बेशक अकल वालों के लिए इसके अंदर निशानियां हैं। तो वो निशानियां जब ढूंढने निकलते हैं ना लोग अकल वाले, तो उनको जब 80% आयात जो है वो साइंस जब प्रूव करते हैं तो पता लगता है कि 1400 साल पहले जो है वो कुरान पहले बता चुका है, और बगैर दलील के बता चुका है। और कुरान इसलिए कह चुका है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और उसके बाद फौरन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, कि ये किताब बरहक है और तुम्हें अल्लाह पे गैब का ईमान रखना होगा। जब आपके सामने वो 80% दलाइल भी रखे जाते हैं ना कि सर ये 80% आयत कुरान से प्रूव हुई हैं, और ये साइंसदान ने कहा हुआ है ये कुरानी का आयत है, तो आप वहाँ पे गोलमोल कर देते हो कि ख्यालात तो इंसान को कहीं से भी आ सकते हैं, रिलीजन से भी आ सकते हैं। सर इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा जिस दिन ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूल जो था वो अल्लाह ताला ने ही, जो इन्फॉर्मेशन थी वो अल्लाह ताला ने ही इंसान के अंदर डाली थी, सेल के अंदर डाली थी। लेकिन उस वक्त हो सकता है वक्त ना हो कि आप तौबा कर सकें, अभी भी वक्त है। अल्लाह ताला आपको जो है वो तौबा की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें भी तौबा की तौफीक दे। हमारे जो अमाल, हम लोग अमाल सालेह से दूर रहते हैं, अल्लाह ताला हमें उनके करीब करे, अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला मरते दम तक हमें कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी आयात हैं जो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने जो हमें सुनाई थी, अल्लाह ताला के नबी पर उतरी थी, और आज साइंस वो जो है वो प्रूव कर रहा है, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। माना तो उन्होंने भी नहीं था जिनके सामने चांद दो टुकड़े हो गया था, माना तो अबू जहल ने भी नहीं था जिसके हाथों में कंकर बोल पड़े थे, माना तो अबू लहब ने भी नहीं था कि जिसके बारे में कुरानी आयत आई थी कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब बर्बाद हो चुका है। हजरत अब आप लोग ये देखें कि वो बंदा उसके बाद कितने साल जिंदा रहा है, वो चाहता ईमान ले आता और वो इस आयत को गलत प्रूफ कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला हो वो कभी भी जो है बग़ैर दलील के नहीं होता, वो कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता। लिहाजा हमारे लिए बेहतर यही है कि हम इन चीज़ों को माने, और ये साइंस जो आपको प्रूव करके देती है इस पे तो आपको खुश होना चाहिए कि फितरत का दीन है, हम लोग फितरत पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जिस दिन हर शख्स उन अमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे देख लेगा और काफिर कहेगा कि ऐ काश मैं मिट्टी होता।